साहिब जियो हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सयाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। दंडोत बंदन अनिक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। परम सन्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर धन गुरु नानक सेवक जथा जो हर साल धन गुरु नानक साहब महाराज जी दी आगमन पुरब नूं समर्पित विशेष गुरमत समागम आयोजित करते ने, इस वरे दे इस गुरमत दीवान दी आप जी हाज़री भर रहे हो। सन्मानयोग भाई रविंदर सिंह जी हजूरी कीर्तनीय श्री दरबार साहिब अमृतसर अमृत गुरबाणी कीर्तन सरवण करा रहे सन। मेरी भी इच्छा सी कि जिस संबंध विच ये सारे वीर भैन इकट्ठे हो के दातार दा पुरब मनाते ने, उस सतगुरु दा जिक्र जरूर कर सकीए। भाई साहब ने कीर्तन की समाप्ति ते जिस पौड़ी का कीर्तन किया, आप सब नूं पता है ये भाई गुरदास साहब दियां वारां विचों पहली पौड़ी दी एक पहली वार दी एक पौड़ी है। आप सब ने नाल बोलिया है। एक तां आपां इस पौड़ी दे अर्थ जरूर करने ने, क्योंकि आम तौर ते अस्थाई चेते रहिंदा है। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। पर जदों आप जी नाल पौड़ी गा रहे सी ते मेरे मन से भी ये अर्थ आपां यतन करिए, क्योंकि अर्थां च कदी दावा नहीं हुंदा। कदी भी जिहड़ा बंदा अर्थ च दावा करदा खिमा कर दिया जे, शायद वो अर्थ नहीं जानता। महाराज जी ने कहा सोई अजान कहे मैं जाना, जानन हार ना छाना रे। जिहड़ा बंदा कहता मैं जान गया, तो महाराज कहते ने असल च उन्हें कुछ भी नहीं जानिया।
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਇੱਥੇ। ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਕੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾਂ, ਗਾਵਾਰਾਂ ਗੱਗਾ ਕੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾਂ ਗਾਵਾਰ, ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਜੀ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ, ਇੱਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ। ਪਰ ਥਾਟ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਫਟਿਆ ਧਰਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਖਿਆਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ। ਉਂਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਚੇਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤੋਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤੋਦਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਚਟਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 15 ਫੁੱਟ ਸਿਰਫ 10% ਦਿਸ ਰਿਹਾ, 90% ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਣਦਿਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ, ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਤੇ ਮੈਲਾ ਮਨ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਤਨੇ ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਦਾਸ 4 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਵਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਖੀ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਹੈ ਸਾਖੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਆਖੀ, ਫਿਰ ਸਾਖੀ, ਤੀਸਰਾ ਬਿਲਾਸ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਹੋਵੇਗਾ ਆਖਣਾ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ। ਆਖੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਆਖੀ।
ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਖੀ, ਇਹ ਦੋ ਅਰਥ ਮੈਂ ਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਦੂਜਾ ਆਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਲਣਾ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਖੀ 'ਚ। ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋਖੀਮ ਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਨ ਆਪੇ ਹੋਵਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਖੀ। ਆਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਆਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ 'ਚ ਲਵਾਂਗਾ। ਆਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਆਖੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿਰਲੇਖ। ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੇ। ਆਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਵਿਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਵੀ ਆਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਖੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ ਜੀ, ਸਾਖੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਆਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਖੀ। ਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਵਾਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਕਸ਼ੀ। ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਖੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੀ ਵਿਦਵਾਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਵਲਾਇਤ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲਾਇਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਮੀਣੇ ਮਿਹਰਵਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ, ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਉਂਝ ਸਾਖੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਆਖੀ, ਫਿਰ ਸਾਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪੋਇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਾਸ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ, ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਦੋ ਨੇ ਜੀ, ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਹਿਲਾ ਆਖੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਖੀ, ਤੀਸਰਾ ਬਿਲਾਸ, ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਗੁਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਵੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦ ਪਦਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਅਮਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
इस यूनीवर्सिटी के प्रोफैसर ने गुरु नानक साहब बारे आ क्या, पढ़िया लिखिया वर्ग वाकई लाइक करता भी इन्नी नॉलेज कि गुरु नानक साहब बारे अंग्रेज़ की कह रहा है, गुरु नानक साहब बारे मुसलमान की कह रहा है, गुरु नानक साहब बारे हिंदू स्कॉलर की कह रहा है। मेरी हथ जोड़ के बेनती है, सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहब तो पूछिए कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी गुरु नानक साहब बारे की कह रही है, फिर अर्ज है। क्योंकि साढ़े को सब तो वड्डा स्रोत उस बिरबर्ज है। गुरु नानक साहब बारे की शब्द वरते जा रहे, महाराज ने अपनी सारी रचना च जिहड़ा अपने लिए शब्द वरत्या, दास नानक, परनवत नानक, इत्थों तक निम्रता शब्द चले गए जी। बद बख्त हमचू बखील गाफिल बेनज़र बेबाक, नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पा खाक। असी एक शब्द पढ़ने, मैं कीता ना जाता हराम खोर। महाराज अपने लिए शब्द वरत रहा थोड़ा जिहा जी। एक बाबा आकार रूप है, दूजा भाई मरदाना है। बगदाद च होया कि इस पौड़ी नूं ध्यान ना सुनियो, फिर एक एक लफ्ज आप देखांगे। एक सतगुरु लिए शब्द वरते गया, मैं फिर अर्ज करांगा कि गुरु नानक साहब जी दे बारे आप हजूर कहते मैं कीता ना जाता हराम खोर, हों क्या मुँह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। बड़े निम्रता भरे शब्द वरते। होर थोड़ा सुनियो, उंज उस वक्त जो कुछ गुरु नानक साहब लई उस वक्त दे लोकां ने वरते शब्द, मेरे सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने भी बाणी च दर्ज कर दिता। देखो एक शब्द है सतगुरां दा, कोई आख है भूतना को कहे बेताला। इहदा मैं लोकां ने नाम दिते, कोई भूतना कह रहा है, कोई बेताल कह रहा है। कोई आख है भूतना को कहे बेताला, कोई आख है आदमी नानक विचारा। तीन शब्द वरते। छड्डो जी ये भूतना, महाराज मैं अर्थ कर रहा, वैसे सतगुरु कृपा करे साडी रसना तो सतगुरां दे अदब च ही शब्द निकल। कोई आख है भूतना को कहे बेताला, कोई आख है आदमी नानक विचारा। ते महाराज जी कहते मैं कौन खां, कह लगे भया दीवाना शाह का, नानक बहुराना हो हर बिन और न जाना। फिर सुनियो, भया दीवाना शाह का, अपने आप को दीवाना क्या। फिर इस शब्द की व्याख्या भी कर दी, केड़ा दीवाना। क्योंकि अजकल असी देखने कोई पैरों च घुंघरू पा के नच्ची जा रहे, कोई सिगर दे सूटे मार के हरा कपड़ा बन के दीवाना मस्ताना बने, खिमा कर दिया जी, कोई मस्त बनया है। गुरु जी ने दीवाने लफ्ज की परिभाषा दे दी, मैं कौन दीवाना। फिर सुनियो, भया दीवाना शाह का, नानक बहुराना को हर बिन और ना जाना। तो दीवाना जानिए जा भय दीवाना होए, मैं वो दीवाना हाँ जिहड़ा परमात्मा दे भय च जीना हाँ। एक ही साहिब बारा दूजा अवर ना जाने कोई, तो दीवाना जानिए जा एकाकार कमाए। वेखो किड्डे प्यारे शब्द वरते। अखीर तो शब्द दियां तुकां ने, तो दीवाना जानिए जा साहिब धरे प्यार, मंदा जाने आपको अवर भला संसार। महाराज कहते ने एकाकार कमाए, भय विच रहे, साहब नूं प्यार करे। दरअसल वो ही दीवाना है। महाराज ने अपने लिए शब्द वरत्या दीवाना। आओ शब्द थोड़ा देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब च महाराज लिए जेड़े लफ्ज वरते गए, गुरु जोत ने, फिर अर्ज सुनियो, गुरु नानक साहब की उपमा भी शब्द कहे आ। फिर अर्ज है, गुरु जोत ने गुरु नानक साहब की उपमा भी शब्द कहे आ। यही कारण मैं परसों चौथ शायद न्यूयॉर्क किया सी, आप जी पाठ कर दो। 6 गुरु साहबाना दे बचन असी पढ़ने, पर 5 गुरु साहबाना विचों किसे गुरु साहबान ने अपने उस निजी नाम की बाणी च वरतों नहीं की, जिहड़ा नाम असी उन्हां दे इतिहास विचों पढ़ने। जिवें धन गुरु अंगद साहब दूसरे पातशाह ने, हजूर दे 63 शब्द ने, पर गुरमुखो 63 शब्दों के विचों जदों असी सलोक ने 63 सलोकां विचों गुरु अंगद साहब ने किसी भी सलोक विच सच्चे पातशाह जी ने अपना अंगद शब्द नहीं वरत्या। धन गुरु अमरदास महाराज जी की बाणी 17 रागां विच है, पर गुरु अमरदास महाराज जी ने किसी शब्द विच, किसी पौड़ी विच, किसी सलोक विच अपना निजी नाम नहीं वरत्या।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਨੌਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਨਕ ਵਰਤਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿ ਕਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ, ਨੌਵੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਓ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1539 ਤੱਕ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਪਰਮਤ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਨੀਚ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਦੀਖਿਆ ਆਖ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਿਫਤੀ ਸੱਚ ਸਮਿਓ, ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ੀਐ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਦਰਸੀ ਜਿਨ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਤਰੀ ਤਰਾਂਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਕਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਅਰਥ ਥੋੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਜਥਾ। ਉਂਝ ਨਾਨਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਗੰਜਨਾਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਆਪ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਪਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ 2 ਨੂਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਲਿਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨੰਨਾ ਕੰਨਾ ਨੰਨਾ ਤੇ ਕੱਕਾ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਆ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਖਰਦੋ ਨੂਨ ਨਾਮ ਪਾਕਸ਼ ਨਾ ਈਮੋ ਨਸੀਰ, ਅਲਫ ਮੈਨਾ ਅਹਦ ਕਾਫ ਆਖਰੀ ਰਾ ਕਬੀਰ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਉਣਾ ਉਸ ਪੌੜੀ 'ਤੇ। ਵੇਖੋ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਹੈ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਨੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਨਾਈਮ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂਨ ਤੋਂ
जो शब्द बनाया वो नईम का लफ्जी अर्थ हुंदा नियामतां वंडण वाले, दातां देण वाले। भाई साहब भाई नंद लाल साहब कहते धन गुरु नानक साहब महाराज आप जी दे नाम नाल जो पहला नून आया है, इस नून का शब्द बनाया नईम, नियामतां वंडण वाला। इहदा अर्थ है भाई सिखो, गुरु नानक साहब दे नाम का पहला नन्ना ये अर्थ कर रहा है कि गुरु नानक साहब महाराज जिस दी झोली च कितों भी दात ना पै, सच है वे गुरु नानक साहब खाली झोलियां नूं नियामतां नाल भर दिंदे आ। देखो उन्होंने किन्ने शरधा भरे ये अर्थ किए इस नानक शब्द दे। नईम पहला नून मैरिज की, नईम नियामतां देण वाले। उस तो बाद आउंदा कन्ना, जिहड़े गुरमुखी पढ़िया बड़ा सौखा है, उंज परशियन विच है अलिफ, जिहड़ा आवाज़ दिंदा आदि जी। अलिफ तो उन्होंने शब्द बनाया आहद, जिन्हों खद विच नहीं बन्निया जा सकता। ਇਹਦਾ मतलब वो करते आ गुरु नानक साहब एक नूं मनदे आ, एक नूं पूजदे आ, सच वे उस एक नूं मनदे पे आ जिस एक नूं खद दे विच बन्निया ही नहीं जा सकता। अल्फ दा अर्थ आहद परमात्मा, जिहड़ा सीमा विच नहीं आउंदा जी। उस तो बाद फिर दूसरा नन्ना हुंदा है, उन्होंने इस नन्ने तो अखर बनाया नून तो नसीर। परशियन विच नसीर कहंदे आ मददगार नूं। ਇਹਦਾ अर्थ ਇਹ ਵੇ कि इस दुनिया विच डिगे होए नूं लताड़न वाले बहुत मिलणगे, पर सच ये वे धन गुरु नानक साहब जिस दी कोई मदद नहीं करता, मेरे गुरु नानक साहब डिग्गिया होया दे मददगार ने। मैं सिर्फ अखरी अर्थ कर रहा। पहले नन्ने का अर्थ नईम, शब्द नईम नियामतां वंडण वाले। कन्ने तो शब्द बनाया अल्फ तो आहद, परमात्मा नूं एक रब नूं मनण वाले। दूसरे नून का मतलब नसीर, नसीर का अर्थ है मददगार। तो प्यारिओ उस तो बाद आउंदा काफ कक्का। वैसे उन्होंने काफ लई शब्द वरत्या कबीर, क्योंकि परशियन एक तो भगत कबीर जी ने, उंज परशियन विच कबीर का अर्थ हुंदा वड्डा। फिर सुनो काफ तो कबीर कहंदे ने भाई गुरु नानक साहब नियामतां वंडदे आ, गुरु नानक साहब एक दे पुजारी ने। सच ये वे कि धन गुरु नानक साहब महाराज डिग्गियां की मदद करते आ। ते कबीर का अर्थ किते भी चले जो चढ़ते तो लैके लेंदे तक गुरु नानक साहब तो वड्डा घर कोई नहीं मिलेगा, वो सब तो वड्डे ने। मैं तां बेनती की उन्हें शब्द वरते गुरु नानक साहब लिए। थोड़ा जिहा एक होर मैं आप नाल सांझी कर देना। असी जन्म साखी पढ़ने, उहदे विच गुरु नानक साहब लिए जिहड़े शब्द वरते आ बहुत कमाल दी। जिहड़ी वही वाली साखी है, उंज सतगुरां ने अपने आप लिए शब्द वरत्या खों ढाडी वेकार कहरे लाया, अपने आप नूं ढाडी कहा। पर जन्म साखी वाला कहंदा है कि अकाल पुरख वैगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर ने मेहर की। उन्होंने कहा ये जन्म साखी वाले दे बोल ने, पुरातन जन्म साखी च कहंदा सतगुरां लई नानक जिस ऊपर तेरी नज़र तिस ऊपर मेरी नज़र। फिर सुनो जिस उत्ते गुरु नानक साहब आप जी की नज़र होगी उस उत्ते मेरी होगी। जिस ऊपर तेरी नज़र तिस ऊपर मेरी नज़र, जिस ऊपर मेरा कर्म, कर्म का अर्थ बख्शिश वाहगुरू जी कह रहे हैं, तिस ऊपर मेरा कर्म। अगे तेरा मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर, तेरा नाम गुर परमेश्वर। फिर अर्ज कह गुरबाणी च असी जदों गुरु सिफत करने आ, उस वक्त गुरु नानक साहब महाराज उन्हां दी जिहड़ी सिफत की गई वो गुर परमेश्वर के रूप च की गई। भाई साहब भाई गुरदास साहब की जिहड़ी पौड़ी आपां सारियां सुनी, भाई रविंदर सिंह जी पढ़ के गए। इस पौड़ी के थोड़े आप अर्थ करने ने। एक तो असीं पढ़िया फिर बाबा गया बगदाद नूं, इहदा मतलब धन गुरु नानक साहब बगदाद गए। आप सब नूं पता है बगदाद इराक की कैपिटल है। जां होर शब्द वरतां कि असी बगदाद संबंधी जिहड़ा इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम है, उहदे विच बगदाद दे जिहड़े लफ्जी अर्थ दिते ना जी, कला शहर नहीं दिते। बगदाद का अर्थ है कि रब वल्लों दिता होया कीमती तोहफा। उन्हें शब्द वरत्या परमात्मा वल्लों दिता होया कीमती तोहफा, उन्होंने बगदाद कहिंदे आ। फिर अर्ज कह मैं आपनूं रिपीट करांगा। बाबा जी बगदाद गए, उन्हों की बगदाद फेरी संबंधी बहुत किताबां भी ने।
बाबा जी ने शब्द वरत्या, फिर बाबा गया, भाई साहब ने, फिर बाबा गया बगदाद नूं, बाहर जाए किया अस्थाना। बगदाद तो बाहर वाले पासे गुरु नानक साहब जी ने अपना अस्थान, अपना टिकाणा कर लिया। उत्थे भाई साहब ने इन्ने शरधा दे बोल लिख दिते, एक बाबा अकाल रूप, जिन्हों मैं आप ना सांझी सांझ पार के आया, गुर परमेश्वर सतगुर विच आप रख्योन कर प्रगट आख सुनाया। वो शब्द वरत रहा, एक बाबा अकाल रूप, एक तो धन गुरु नानक साहब अकाल स्वरूप, अकाल दा साकार रूप, वो धन गुरु नानक साहब ने। दूजा उन्हें शब्द वरत्या, दूजा रबाबी मरदाना। जिहड़ा बाबा लफ्ज है आपनूं पता होना, क्योंकि साडे च बड़ा प्रचलित शब्द है। इस बाबा लफ्ज भी जिहड़ा है ये भी परशियन दा है, ये पिता लई वरत्या जाता है, ये बजुर्ग लई वरत्या जाता है। भाई गुरदास साहब ने गुरु लफ्ज भी वरत्या, सतगुरु लफ्ज भी वरत्या ते बाबा भी वरत्या। जदों असीं उन्हां दा बचन पढ़ने, सतगुरु नानक प्रगटिया, सतगुरु शब्द भी वरत्या। हुणे भाई साहब गान कर रहे सन, कल तारन गुरु नानक आया, गुर शब्द भी वरत्या। हुण तीजा लफ्ज भी उन्हां वरत्या कि एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। थोड़ी जी बेनती, भाई मरदाना हजूर दे नाल ने, क्योंकि असीं भाई साहब दा जिक्र अक्सर करने। भाई मरदाना साहब जी धन गुरु नानक साहब तो जो खोज दसदी है, मैं किसी वक्री गल चों नहीं, जो प्रोफैसरां ने जां सियाणे बंदे, वाहिगुरू बंदगी वाले सारे सियाणे खोज करके वो कहते हैं भाई मरदाना जी गुरु नानक साहब तो 10 साल उम्र करके वड्डे सन, जो इतिहास दसदा है। गुरु नानक साहब नाल भाई मरदाना जी 1480 तो लैके सन ते 1534 तक भाई मरदाना जी ने रबाब बजाई है। हुण तुसीं दूजा रबाबी मरदाना पढ़ लेना, बड़ा सौखा, बहुत लफ्ज विच बहुत कुछ भाई साहब कह गए। 1480 तो लैके 1534 तक जिसने रबाब बजाई, असीं उसनूं भाई मरदाना साहब कहने आ। प्यारिओ 54 साल अपनी जिंदगी दे गुरु नानक साहब दे चरनां च जिन्हें सेवा की, उन्होंने नमस्कार है। मेरा ख्याल भाई मरदाना जी तो वध किसी ने हजूर की संगत नहीं की। माता पिता ने, हजूर दे महल ने, सिख सेवक ने, 54 साल जिस बंदे ने हजूर दे नाल रबाब बजाई, सच ए वो धन भाई मरदाना जी साहब ने। उंज भाई मरदाना जी दे संबंध विच एक बचन भाई गुरदास साहब ने होर किया। ये तो चलो उदासी का जिक्र किया उन्हें, जदों सिखां की गिनती की उहदे विचों लिखते ने, भला रबाब वजाए दा मजलस मरदाना मिरासी। फिर सुनियो, रबाब बड़ी सोहनी वजांदा है। मजलिस का लफ्जी अर्थ इकट्ठ, असी शब्द वरत लांगे संगत। भाई मरदाना जी मजलिस विच, इकट्ठ विच, संगत विच रबाब वजांदे आ। भला रबाब वजाए दा मजलिस मरदाना मिरासी। हुण आ जिहड़ा मिरासी शब्द है, असी आम तौर पर मिराशी कहने नहीं, ये मिरासी अरबी का शब्द है जी, मिरास। इथों शब्द बनया मिरासी। मिरास का लफ्जी अर्थ हुंदा संभालन वाला, चेते रखण वाला, सांभण वाला। ये तो शब्द मिरासी अज भी तुसी देखियो, जिन्होंने पंजाब के कल्चर का पता है, जदों पिंडां विच मिरासी आउंदे सन किसी मरने परने विआह ते, वो एक गल कहंदे सन, खलोते खलोते अपने जजमान दियां 10-12 पुश्तां जबानी गिण जांदे सन कि एदा पुत्तर, एदा पुत्तर। मिरास का अर्थ है संभाल के रखण वाला। इसे करके भाई साहब लिए जिहड़ा शब्द वरत्या, असी मिरासी वरतने आ। मैं अर्ज करांगा, भाई मरदाना साहब पिछले दिनी गुरु नानक साहब का विआह दी पुरब सी जी, संगतां ने बहुत भावना नाल मनाया। साडे इतिहास ने कहा कि महाराज जदों गुरु नानक साहब की कुड़माई हुई, कोई सज्जन उस बारे कहंदे आ, कुछ विआह बारे कहंदे। हजूर ने चोला बहुत सोहना पाया, विआह वाले दिन कपड़े बहुत सुंदर सन जी। भाई मरदाना जी हजूर नूं कहंदे आ, महाराज जजमान अज चोला, अज कपड़े बहुत कमाल दे, इन्ने सोहने। सतगुरां ने कहा तेनों चंगे लगदे आ? कहंदा जी सोहने बहुत लगदे आ। इतिहास कहंदा हजूर ने अपना चोला उतार के भाई मरदाने नूं दे दिता। भाई मरदाने नूं चोला पकड़ांदियां
एक शब्द कहा, कहन लगे मरदाना जी भाई साहब जी भाई की पदवी दी, भाई साहब जी ये चोला तुसी मेरा पा लिया है, एक मैं बचन तो लेना है जी दसो। कह लगे इस चोले नू पा के कदी भी किसी दे दर ते झोली अड के मंगना नहीं, जिस चीज़ की लोड़ होवे मेरा घर तेरा घर है। फिर बिनती मेरा चोला किसी अगे झोली अडदा नहीं, तू चोला पाया है। एक होर बेनती करा, गुरु नानक साहब नाल इन्ना समा कढ़ के भाई मरदाना साहब का अंतला समा सन 1534 नूं सच एवे गुरु नानक साहब जी के सन्मुख ही होया है। पहला उन्होंने बारे बहुत होर साखियां ने, मैं बड़ी सरल जी कही है कि उन्होंने 54 साल गुरुदेव नाल कीर्तन किया है। 54 साल थोड़े नहीं। उत्थे फिर भाई साहब जी ने लिखा, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। फिर तुका सुनियो जो भाई साहब पढ़ के गए। फिर बाबा गया बगदाद नूं, बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा आकार रूप, दूजा रबाबी मरदाना। हुण अगली तीजी जड़ी तोके, दित्ती बांग निवाज कर, दित्ती बांग निवाज कर, सुन समान हुआ जहाना। हुण ये बांग केड़ी दित्ती, क्योंकि मुसलमान वीरां दी बांग दे अपने शब्द ने। इत्थे भाई साहब कहते गुरुदेव ने, भाई गुरदास साहब कहते उच्ची सारी बांग दित्ती। वो बांग की सी, उहदा जिक्र भाई मनी सिंह ने लिखिया। वो बांग सी, गुर बर अकाल, चित चरण नाम, घर कर प्रणाम, सत श्री अकाल। उहदे विच एक शब्द वरत्या सर्ब जी प्रतपाल। ये उच्ची सारी बांग दित्ती। ਇਹਦਾ मतलब जो हजूर ने कहा गुर बर अकाल, सत श्री अकाल, इन्नी उच्ची आवाज़ गूंजी। हुण अगली तोक बड़ी स्पिरिचुअल है जी। ये तो बड़े सरल अर्थ ने जी कि दित्ती बांग निवाज कर। हुण अगली तुक दा अद्धा हिस्सा है सुन समान होवा जहाना। ये सुन समान की है कि इन्नी आवाज़ दित्ती उच्ची, सारे लोग जिन्ना तक आवाज़ गई वो सुन हो गए। सुन की है। साखीकार ने कहा कि लोग पत्थर हो गए, पत्थर मारना है पर पत्थर बन गए। पर मैं आपनू विनती करांगा, सुन जोगियां विच एक परम अवस्था है। ये सीधे जे अर्थ यूं कर लीए कि जिन्ना लोकां दे कन्नां विच धन गुरु नानक साहब दी आवाज़ पई, सच ये वो सारे अंदरों अफुर हो गए। किसे दे अंदर भी किसे तरह का कोई फुरना रहा ही नहीं। फिर अर्ज है ये बड़ा सुन समान हुआ जहाना की है। उंज बाणी ने क्या, अंतर सुनंग बाहर सुनंग तरभावन सुनम सुनंग। चौथा सुनना जो नर जाना ताको पाप ना पुनंग। जेड़ा सुन समान हो गया, यदा मतलब बिल्कुल अफुर हो गए। किसे दे अंदर भी रंचक मात्र कोई फुरना नहीं उठिया। यदा मतलब उस आवाज़ विच इन्ना क दम सी, जिन्ना लोकां दे कन्नां विच आवाज़ पई, उन्हां दे भटकदे होए मन गुरु नानक साहब ने एक खिन विच टिका दिते। एक होर इत्थे बेनती, क्योंकि अगले जिहड़ियां 17 ने वो बड़े बड़े रूहानियत बचन ने। मैं शायद पहला भी जदों इन्हां गुरमुखां दे प्रोग्राम च आया, मेरा ख्याल शायद मेरी कथा कीती होवेगी। हुण इह सीधी गल है कि उत्थे पीर देखदा है। उत्थे भाई साहब ने नहीं कहा भी कोल आ गया, कहते ध्यान च देखदा है। फिर सुनियो, फिर बाबा गया बगदाद नूं, बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना, दित्ती बांग निवाज कर, सुन समान होवा जहाना। अफुर हो गए। सुन मुन नगरी भई, देख पीर भया हैराना। सारे अफुर हो गए। वो पीर देख के हैरान हो गया। हुण उन्हें देखा किवें जी? हुण वैसे देखण दा लफ्ज़ तां मैं कहांगा अखां नाल देखना, पर भाई साहब कह रहे ने देख पीर पया हैराना। पीर हैरान हो गया। इस आवाज़ ने 4 चफेरे अफुरता बिल्कुल सुन कर दिते। अगे भाई साहब कहने देखा ध्यान लगाए कर। ये लफ्ज़ फिर ध्यान नाल सुनियो, गुरमुख आपा पढ़िया। वो कोल नहीं आया, वो जिथे अपने टिकाणे ते बैठा उत्थे है। वो ध्यान ला के वेखदा पिया, ध्यान नाल देखदा है ये आवाज़ कित्थों आई। इत्थे मेरी एक बेनती है, ध्यान विच बड़ी वड्डी ताकत है जी। असीं हुण जदों अरदास करने
किते भी अरदास करो, घर करो, निजी करो, गुरुद्वारे विच भी अरदास इकाग्रता का विषय है। चुप करके आप करने हैं, पर अरदास विच 4 वारी अरदासिया आवाज़ दे के कहंदा संगत जी इन्हां दा ध्यान धर के वाहिगुरू बोलो। संगत विच अरदास तां एक करे, बोल क्यों रहे हैं सारे? पहली बारी वो शब्द वरते ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। दूजी बारी वो 5 प्यारियां वाला शब्द कह के अगे उस पदे च कहते 3 प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। फिर अगे शहीदां वाला हुंदा है कि धर्म नहीं खा रहा, सिक्खी केसां सौसां नाल निभाई, असीं उन्हां दा ध्यान धर के बोलने, बोलो जी वाहिगुरू। ते चौथी वार वो कहते हैं 5 तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। मेरी बेनती है जी 4 वारी ध्यान धरांदे ने, एक बारी आउंदा खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरू, ते 6वीं वार आउंदा धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरू। ध्यान नैगेटिव अप्रोच भी रखता है ते ध्यान पॉजिटिव अप्रोच भी रखता है। सीधी गल, कपटी भी ध्यान धरदा है ते बंदगी करने वाला भी ध्यान धरदा है। इस शब्द नूं फिर सुनियो, कहा भयो जो 2 लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो। की होया जे तू अपने दोनों नेत्र बंद कर ले, ध्यान च बैठा है, पर तेरा ध्यान रूहानियत वाला नहीं, तेरा ध्यान बगले वाला है। बगले ने भी मच्छी पकड़नी है ते ध्यान की एकाग्रता उहदे कोल भी चाहिए है, पर वह कोई बंदगी थोड़ा कर रहे। इनू आसा की वार च महाराज ने क्या, पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजस बगल समादम। मेरी बेनती है, ध्यान को कर्म करने वाला भी वरत रहा है, ध्यान सुधर्म कमाने वाला भी वरत रहा है। उंज गुरु ग्रंथ साहिब विच एक ध्यानी जीव का जिक्र किया है, भाई गुरदास साहब ने भी किया है। उंज भगत धन्ना जी का एक बचन है, कच्छू कुम्मी आंडे रेते च देंदी है, आप पानी च रहिंदी है, पर गुरमुखो वो आंडे का ध्यान धरदी है। उस दे ध्यान नाल ही आंडे, जिवें मुर्गी जां होर जिहड़े जीव आंडियां उत्ते बहिंदे ने, कच्छू कुम्मी नहीं बैठदी। कच्छू कुम्मी रेते च आंडे ने, आप पानी च है, सिर्फ वो आंडियां दा ध्यान धरदी है। उहदे ध्यान की एनर्जी नाल आंडे विच बच्चे का शरीर बनता है। जदों दिन पूरे हो जाते हैं, ध्यान नाल तोड़ के अपने वाल लै आउंदी है। भाई साहब ने भी लिखा, भाई गुरदास साहब ने, कच्छू आंडा ध्यान धर कर परपक नदी विच आणे। गुरु ग्रंथ साहिब विच कुम्मी जल में तन तिस बाहर पंख खीर तिन नाखी। वो ध्यान नाल। मेरी इत्थे बेनती सुनियो, जिहड़ा पीर है वो आम बंदा नहीं। दस्तगीर चलो ना लिखिया, दस्तगीर दा दस्त दा अर्थ हुंदा हथ, गीर दा अर्थ पकड़न वाला, दस्तगीर दा अर्थ जिन्हें हथ पकड़िया है। उत्थे भाई साहब कहते वो ध्यान च बैठा है, कोल नहीं आया। उंज लोकां दे अंदर नूं बंदा कितना स्पिरिचुअल होवेगा जी। वो दस्तगीर पीर आम नहीं कोई। मैं तां कहा इस पौड़ी नूं बड़ी रूहानियत पौड़ी है। वो ध्यान च देखदा है कि एक फकीर है, बड़ा मस्त संसार दे बंधना तो मुक्त लग रहा है। उन्हें ध्यान च देखा वो हजूर दे कोल हुंदा। फिर पौड़ी पढ़िए जी, फिर बाबा गया बगदाद नूं, बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना। दित्ती बांग निवाज कर सुन समान खोवा जहाना, सुन मुन नगरी भई देख पीर पया हैराना। देखा ध्यान लगाए कर एक फकीर वड्डा मस्ताना। अगे कहते पुछया फिर कै दर थे कोल आके। फिर ध्यान नाल सुनियो, पहली तुक च कोल नहीं आया, पहला सिर्फ इन्ना है देखा ध्यान लगाए कर। वो ध्यान च वेख रहा है। हुण ध्यान तो बाद वो फिजिकल तौर पर तुरिया, जिथे गुरु नानक साहब महाराज बैठे वो पीर उत्थे आ गया। पुछया फिर कै दर थे कोल आके, नेड़े आके पुछया फिर कै दस्तगीर कौन फकीर किसका करहाना। ये फकीर दा केड़ा घराना है, ये केड़े सिलसिले विचों है। सतगुरु गुरु नानक साहब खामोश सन। अगे फिर भाई मरदाना जी बोले, कहन लगे भाई जे तू पूछना है कौन फकीर किसका करहाना। अगे वो कहते नानक कल विच आया रब फकीर
ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ। इस कलयुग दे विच धन गुरु नानक साहब ने, उंज मैं खिमा करियो भाई साहब भाई बलदेव सिंह सूड़ विद्वान ने, कई थावां ते पाठ है रद, जिहड़ा रब शब्द की थां रद भी आया जी। ਇਹਦਾ मतलब फकीरी सिर्फ इक्को रब नूं जाणदा है, पर इत्थे ज़्यादा जिहड़ा पाठ प्रचलित ते अर्थ भी टुकदे ने। भाई मरदाना जी कह रहे हैं नानक कल विच आया, रब फकीर इक्को पहचाना। कि प्यारिओ ये परमात्मा दे फकीर नूं रब नूं, ये परमात्मा दा फकीर सिर्फ एक परमात्मा नूं ही पहचानदा है। अगला शब्द बगदाद विच क्या, धरत आकाश चौं दिशदाना। ये फकीर केवल एक पासे नहीं कहता कि खुदा दा घर इधर है, धन गुरु नानक साहब चौवां पासियां ते अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे घर नूं मनदे पए आ। मैं आप नूं बेनती करा, ये पौड़ी आपां पढ़ी, ये मैं लफ्जी अर्थ थोड़े किए। एक होर अर्ज करके समाप्ति करांगा क्योंकि मैं समय तो 10 मिनट उत्ते जा चुका वहाँ। कल मैं डॉक्टर बलबीर सिंह उन्हां दा जिक्र किया सी। उन्हां दी एक किताब है लम्मी नदर, उसका जिहड़ा पहला अध्याय है वो है रबाब, रबाब शब्द। उन्होंने गल लिखी, कहते गुरु नानक साहब बगदाद गए आ, उत्थे 1000 कुछ साल पहला, फिर सुनिया 1000 कुछ साल पहला उत्थे एक बहुत सुगड़ बंदा होया है। उस बंदे का नाम सी हकीम आबू नसर। ध्यान थोड़ी ध्यान ना सुनियो। आबू नसर वो जिस टाउन च रहिंदा सी, जिस नगर च रहिंदा सी, उस नगर का नाम सी फराब। उन्होंने लोग हकीम फराबी कहते सन। ਉਹਦੇ नगर करके ना जो नाम है शहर का नगर का, उन्होंने कहते हैं हकीम फराबी, फरेबी नहीं फराबी। वो बंदा गाउंदा बहुत सोहना सी जी, हकीमी भी जानता सी, वैद सी, हकीमत जानता सी, साज बड़े कमाल का वजांदा सी। पर जो कुछ उन्होंने वजीफा मिलता सी जां उहदी तनख्वाह सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने गुजारे मात्र रख के बाकी वो लोड़वंदां दे विच वंड दिंदा हुंदा सी। कहंदे वो आम तौर ते दौलतमंद बंदियां नूं मिलण तो गुरेज करदा सी। महाराज बारे वो लिख रहा 1000 साल पहला वो फकीर होया, हजूर दे जान तो भी पहला। उन्होंने वैसे जो लिखी किताब उतों कहते 1000 साल पहला, कहते एक इल्म दोस्त बंदा अमीर सी, वो हकीम फराबी नूं मिलना चाहुंदा है। उन्हें बड़ा यत्न किया पर फराबी नहीं मिलिया आबू नसर। एक दिन उस अमीर बंदे दे घर विच महफिल सजी सी। हकीम फराबी ओदे बूहे अगों लंघिया, बिना बुलाया ओदे महफिल भी शामिल हो गया। हुण ओदे कपड़े संसाद मुरादे ओदी बगल दे विच वाजा सी। क्या जांदा है कि उस नूं वेख के सारे लोग उहदा मजाक उड़ान लग पे, क्योंकि उहदे कपड़े सादे ना। अमीरां दी महफिल सी जी, वो मजलिस अमीरां दी सी। उहनूं हसन लग पे। वो बंदे ने की किया, अपनी बगल दे विचों वाजा कढ़िया, साज कढ़िया जी, जिहड़ा वजांदा सी, तंती साज सी जी कहा जाता है। उन्हें साज वजाया ते नाल गाउन लगा। ਉਹਦੇ वजान ते गाउन की तस्वीर इन्ने कमाल दी सी, सारी दी सारी महफिल, की बच्चे की बजुर्ग की जवान, सारे खिड़खड़ा के हसन लग पे, सारे उच्ची उच्ची हसी जान। याद रखियो ਉਹਦੇ गाउन की तस्वीर है। उन्हें पर्दा बदलिया, यदा मतलब सुर बदली, जिवें आपां सुरां बदलने राग दियां, सुर बदल के गाया। सारी दी सारी महफिल उच्ची उच्ची रोन लग पई। ये गाउन की तस्वीर है। पहला हसाया फिर रवाया। वो जदों रोन लग पे उन्हें तीजा पर्दा बदलिया, जिन्ने रोंदे पे सन ना सारे सौ गए। सच है जिथे कोई बच्चा बजुर्ग सारे सौ गए। उन्हें फिर कागज़ कढ़िया। वैसे तो अरबिक शब्द ने, वह उर्दू विच एक लिखिया है, तुरदियां होया उन्हें कागज़ के टुकड़े ते लिखिया कि आपने हकीम फराबी से मिलना था, वो आया, तुमने उसका मजाक उड़ाया, हकीम तुमको हंसा के, रुला के और सुला के जा रहा है। वो कोल गुण सी जियो। फिर लो सुनियो, आपने हकीम फराबी से मिलना था, वो आया, तुमने उसका मजाक उड़ाया, हकीम तुमको हंसा के, रुला के और सुला के जा रहा है।
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਬਗਦਾਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਜ਼ ਦੇ 3 ਪਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਹਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਇਹਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਸਨੋਬਰਜ਼ ਕਰਾ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਸੀ ਇੱਕ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਬਹਿਲੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਸਰਦੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ 60 ਸਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਗਦਾਦ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਫੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਆਪ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ। आओ गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में सर्वता पाए शिव दुख सागर चटी है उदित सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दे जिस पास बैठिया सोई सबना दा वेसा वाहिगुरु जी सोही महला पंजवा जाके दर्श पाप कोट उतारे एकत संग एह भवजल तारे जाके दर्श पाप कोट उतारे एकत संग एह भवजल तारे ओए साधन ओए मीत प्यारे जो हमको हर नाम चितारे रहा जाका शब्द सुनत सुख सारे जाकी टहल जमदूत बेदारे जाकी धीर के स्मर है साधारे जाके सिमरन मुख उजलारे प्रभु के सेवक प्रभु आप सवारे शरण नानक तिन सद बलिहार प्रभु के सेवक प्रभु आप सवारे शरण नानक तिन सद बलिहारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अर्जन साहिब जी महाराज के पावन मुख वाक सूही राग विचों आप जी सरल कर रहे थे। दुनियावी तौर पर साडियां कई रिश्तेदारियां ने, माँ प्यो भैन भरा होंगे ने, पर जिंदगी अंदर सज्जन मित्रों की बहुत बड़ी लोड़ होती है। जो गल असीं अपने सज्जन मित्र को कर सकते हैं और किसी को नहीं कर सकते। गुरुदेव कहते सज्जन होने चाहिए हैं, पर सज्जन किहो जिहे होने चाहिए हैं? कोई साधन कोई मीत प्यारे जो हमको हर नाम चितारे। साढ़े वो सज्जन ने, प्यारे मित्र ने, जिहड़े सानूं वाहिगुरू जी का नाम चेते कराओ, प्रभु के प्यार में जोड़ो, जाके दर्श पाप कोट उतारे। साढ़े वो सज्जन मित्र ने जिन्हों ने दर्शन किए हैं, करोड़ों पाप अंदरों मिट जाए। भेट संग के भवज उतारे।
ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਭੋਜਨ ਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਜਾਗਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸੁਖ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਜਾਗੀ ਟਹਿਲ ਜਮ ਦੂਤ ਵਿਦਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਮ ਦੂਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਭੱਜਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਜਾਗੀ ਧੀਰ ਇਸ ਮਨੇ ਸਦਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੌਸਲਾ ਧੀਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਜਾਗ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਮੁਖ ਉਜਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹ ਜਗ ਪਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸੁਆਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਸੁਆਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਸਰਬ ਲਿਹਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸੇਵ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ का मुख वाक साढ़े हृदय च वसे जी। अगले प्रोग्राम पैसा सकत्तर साहब जी दस रहे हैं, उपरंत समाप्ति होएगी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।